देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रीना सेजवाल। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबको सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुए बड़े धमाके की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर रात करीब 11:22 पर बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज 92 आर्मी बेस हॉस्पिटल और SKIMS सौरा हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक ये धमाका उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जब्त किए गए विस्फोटकों की सैंपलिंग कर रही थी। ये वही विस्फोटक था जो हरियाणा के फरीदाबाद में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के घर से बरामद किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें, 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और जांच में गनई की भूमिका सामने आई थी। वहीं श्रीनगर में हुए इस धमाके को लेकर अभी भी कई सवाल खड़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये स्पष्ट नहीं है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक लाया गया था या इसका केवल कुछ हिस्सा ही परीक्षण के लिए मौजूद था। हालांकि शुरुआती जांच में अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है। जम्मू कश्मीर के DGP नलीन प्रभात का कहना है कि ये किसी तरह की आतंकी कार्रवाई नहीं, बल्कि सैंपलिंग के दौरान हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। मरने वालों में एक पुलिस इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम के सदस्य, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और एक दर्जी शामिल है, जो उस समय वहां मौजूद थे। धमाके के बाद इस पूरे पुलिस स्टेशन के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है। वहीं टीम द्वारा फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोटक में ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ। घटना बेहद संवेदनशील है और अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nowgaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Fortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were
basically part of the magistrates team, one tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of. मेरा नाम शफात अहमद है। शफात साहब, आप यहीं पे रहते हैं, तो क्या बिल्कुल, कल तकरीबन 11:30 के करीब टाइम था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते हैं। ओ ज़बरदस्त, इतना खौफ, इतना ज़ोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात देश में महज 4 दिन में हुए 2 बड़े विस्फोटकों की। आपको बता दें कि देश ने सिर्फ 4 दिन में 2 बड़े धमाके हुए हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं 4 दिन में देश में 2 ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन। चार दिन में देश में 2 ब्लास्ट हुए। दिल्ली हरियाणा जम्मू कश्मीर कनेक्शन 19 अक्टूबर। ये पोस्टर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल में पहली एफआईआर दर्ज। आठ नवंबर, टेरर मॉड्यूल का लिंक हरियाणा में मिला। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के घर से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। दस नवंबर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की मुजम्मिल के घर दूसरी छापेमारी। छापेमारी में 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। दिल्ली में लाल किले के पार कार ब्लास्ट, 13 मौतें। जांच में अमोनियम नाइट्रेट से धमाके की बात आई सामने। 13 नवंबर, फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक को जांच के लिए भेजा गया। पहली एफआईआर नौगाम में ही दर्ज की गई थी। 14 नवंबर, जांच के दौरान अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोटक हुआ। करीब